Today's class we are going to proceed with MCQ part 2 of chapter 6. ये आपका लास्ट एमसीक्यू पार्ट है जिसमें हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने 10 एमसीक्यू किए थे और इसमें भी हम 10 करेंगे. ठीक है, देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. ठीक है, क्वेश्चन है आपका y is equal to 4x minus 5 is a tangent to the curve y square is equal to px cube plus q at 2, 3. Which one of the following is correct? आपको ये कहा जा रहा है your given curve is y square is equal to px cube plus q and the tangent, the equation of line, tangent line equation. जो tangent है आपकी उसकी equation क्या है? y is equal to 4x minus 5. अब ये जो tangent है ये आपका कर्व है, राइट? अब ये जो tangent है ये कर्व पर जिस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो वो पॉइंट भी आपको गिवन है. ये जो tangent है इस कर्व पर वो किस पॉइंट पर है? 2, 3 पर. अब आपको ये कहा जा रहा है you have to find the value of p and q. You have to find the value of p and q. Okay. So first of all, this is the, अगर मैं diagrammatically show करूँ, this is the curve whose equation is y square is equal to px cube plus q and the tangent equation is y is equal to 4x minus 5 and the point of contact where the tangent touches this curve, that is 2, 3, right? Now, by comparing the equation of tangent with y is equal to mx plus c, can I say that slope of the tangent is equal to 4? Yes or no? Can I say that slope of the tangent is equal to 4? Then it means what? dy by dx at this point, that is slope of a tangent, is equal to 4. Now we can find the value of dy by dx from this equation of curve also. The equation of curve is y square is equal to px cube plus q, let equation 1. Now we will find the slope of a tangent from this curve by differentiating both sides. That is 2y dy by dx is equal to 3px square. So dy by dx at this point will be equal to 3px square. ये जो multiply है, on the other side it will be in the divisible form. Now this is your x point and this is your y point at 2 or 3. So by putting the value of 2, it will be 3p2 square. And by putting the value of y, it will be 2 into 3. 2 square 4, 4 3 is 12p and 3 2 is 6. So 6 1 is 6, 6 2 is 12. So on the basis of this curve, equation of tangent is equal to 2p. And by the given equation, slope of a tangent is equal to 4. So can I say that 2p will be equal to 4? It will have p is equal to 4 by 2, that is 2. So by this way, we will have the value of p. You can see that value of p is equal to 2. Now, x is equal to 2, y is equal to 3, and p is equal to 2. Putting all these values in equation 1. Equation 1 is y square is equal to px cube plus q. By putting all these values, what we will have? In place of y, we will put 3. That is 3 square. Is equal to p. Value of p is 2. That is 2. Px cube. Let me check it out whether it is px cube or p cube x. It is px cube. This is the p and this is x. Actually, दोनों की value same है. Don't get confused. Value of p is 2 and then x cube. Value of x is also 2. 2 cube. This is p. This is x plus q. Now you can easily find the value of q. Is it clear? The value of p is equal to 2 and q is equal to -7. Try करो इस क्वेश्चन को. Next question is question number 2. आपको फंक्शन की बना है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -x/2 प्लस sin x डिफाइंड ऑन, ये क्लोज इंटरवल की बना है. आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा या नन ऑफ दिस.
अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिसाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, -1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x दैट इज cos x। अब जो आपका x है वो बिलोंग कर रहा है -π/3 टू π/3। अब देखो जो cos का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आपको पता है साइन फंक्शन जो होता है वो x एक्सिस पर होता है और cos जो होता है y एक्सिस पर होता है। अब x आपका बिलोंग कर रहा है -π/3 टू π/3। -π/3 में cos की वैल्यू होगी 1/2, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस है। पॉजिटिव y एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही आएगी, तो -π/3 पर जो cos की वैल्यू होगी वो होगी 1/2 टू 1। बेसिकली -π/3 टू π/3 की अगर आप रेंज देखोगे तो जो cos की रेंज आएगी वो क्या आएगी, 1/2 टू 1, 1/2 नॉट -1/2, 1/2 टू 1, राइट। cos की जो रेंज होती है, cos होता है आपका y एक्सिस पर, साइन होता है आपका x एक्सिस पर। तो जब आप कर्व बनाते हो वो इस तरह से बनता है आपका। तो -π/3 टू π/3 के बीच में जो आप अगर x आपका -π/3 टू π/3 बिलोंग कर रहा है तो cos की वैल्यू होगी 1/2 टू 1। ठीक है भैया, आपको मैक्सिमम रेंज तो पता ही है cos की क्या होती है, 1 होती है, cos 0। अगर आप -π/3 की बात कर रहे हो और π/3 की बात करो, बीच में 0 आएगा ना, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आएगी ना। और cos और π/3 पर cos 1/2 होगा, y एक्सिस पर होता है। वैसे भी देखो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos ऑफ -π/3 क्या रिटर्न करेगा आपको, cos π/3 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। इज इट क्लियर। तो अगर x आपका -π/3 टू π/3 को बिलोंग करेगा तो cos x आपका, cos x की जो रेंज होगी दैट इज 1/2 टू π/2। यह cos की रेंज आ गई। अब अगर इस रेंज के साथ जाओ, देखो -1/2 में अगर मैं cos x की वैल्यू 1/2 पुट करता हूँ तो f डैश x 0 के इक्वल आएगा। बट अगर मैं cos x की जगह 1 पुट करता हूँ तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी आपकी, -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2। तो जो f डैश x है या तो वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। और अगर डेरिवेटिव आपका 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है तो जो फंक्शन होता है आपका वो इंक्रीजिंग होता है। इज इट क्लियर। अगर एफ डैश एक्स 0 के इक्वल है, 0 से छोटा होता तो डिक्रीजिंग होता, राइट। इक्वल होता तो आप कहते कांस्टेंट है। तो राइट आंसर जो होगा आपका दैट इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज इंक्रीजिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द फंक्शन इज fx is equal to 2x upon log x। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। ये 4 ऑप्शन, ये जो फंक्शन आपका किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल fx is equal to 2x upon log x। If we find the derivative of this function then f dash x is first of all, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो जो इसका डेरिवेटिव है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। By finding the derivative it is numerator and it is denominator। So by quotient rule it will be denominator square, then denominator is as such as derivative of numerator। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 with minus sign, numerator is as such as derivative of denominator। log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, x से आपका x कैंसिल होगा। By taking 2 as a common term within bracket we will have log x minus 1 upon log x square। Now can I say that log x square तो भाई पॉजिटिव ही आएगा। अब ये इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये जो वैल्यू है आपकी ये 0 या 0 से बड़ी हो। इज इट क्लियर। log x माइनस 1 जो आपका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज log x जो है आपका वो 1 से बड़ा होना चाहिए। और अगर log को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूं तो क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू e। x e से e के इक्वल है, e से बड़ा होना चाहिए। अब e के इक्वल तो हो गया, e बड़ा कहाँ तक होना चाहिए, इंफिनिटी तक, e टू इंफिनिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यू कैन सी दैट। भैया ई वाला बताना एक बार। भाई log x ये जो आपका स्क्वायर है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए ये वाला जो पार्ट है ये डिसाइडिंग है।
ये आपका 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा होना चाहिए। log x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो log x आपका 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। अब log में 1 किसकी वैल्यू होती है, या फिर आप ऐसे देखो, अगर log को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो वो क्या हो जाता है, वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ, बिकॉज ई जो होता है वो एंटी लॉग होता है। या फिर आप ऐसे देखो, अगर log x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है, log टू द बेस e, दैट इज log e। तो अगर x को आप देखो तो x किसको बिलोंग करेगा, e ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वन वन का मतलब हो गया log e। या फिर आप ऐसे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू e, e और e से बड़ा, e से बड़ा कहाँ तक जाएगा, वो इंफिनिटी तक। तो e टू इंफिनिटी आपका इंटरवल आ रहा है, तो c इज द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आप लोग करके देखो, सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड। जल्दी बताओ किस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब। ये इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में होगा, ये आपसे पूछा गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, या इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड, जो जैसे मर्जी कर लो। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव करोगे 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर। देन सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो जब आपने तो बेसिकली अगर आप देखो, एक्स प्लस 1 होल क्यूब एक्स माइनस 3 होल क्यूब, एक्स प्लस 1 होल क्यूब एक्स माइनस 3 होल क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल क्यूब। देन x प्लस 1 होल क्यूब आपका एज इट इज होगा, और ये जो 3 आगे आया है ये हो गया आपका, ठीक है, और एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम दिस वैल्यू we can take 3x plus 1 whole square and x minus 3 whole square common. We are left with x minus 3 plus x plus 1. X plus x 2x minus 3 plus 1 minus 2. Finally what we will have, by taking 2 common from this bracket, 3 2 ja 6, x plus 1 whole square, x minus 3 whole square and x minus 1. Now to find the critical point, see 6 cannot be equal to 0, and if x plus 1 equal to 0 then x will be equal to minus 1, x minus 3 equal to 0 then x will be equal to 3, and x minus 1 equal to 0 then x is equal to 1. Now to find the interval, ये आपका f dash x है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, देन माइनस 1 1 t टू इंफिनिटी। अब माइनस 1 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, देखो ये तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना है, यहाँ तक तो सोचना ही नहीं है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेसिकली आपका ये फंक्शन डिसाइड करे। तो माइनस इंफिनिटी माइनस 1 के बीच में से मैंने लिया माइनस 2, तो माइनस 2 यहाँ पुट करूंगा, ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव हो गया फंक्शन। माइनस 1 और 1 के बीच में अगर आप 0 लेते हो, क्या लेते हो आप 0, तो 0 माइनस 1 ये भी नेगेटिव आएगा। 1 और 3 के बीच में अगर आप 2 लेते हो तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा। 3 और इन्फिनिटी के बीच में अगर मैं 4 लेता हूँ, 4 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली आपका 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये आपका जो फंक्शन है आपका ये पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, बहुत आराम से ध्यान से रिलैक्स होके क्वेश्चन को करो। भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, भैया इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि जो कॉमन वाला पार्ट आएगा उसको लेना है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्या था कि जो भी आपका एफ डैश एक्स आता है उसे क्रिटिकल पॉजिटिव पॉइंट होना फाइंड चाहिए। किए जाते हैं, और क्रिटिकल हाँ। फाइंड करके फिर हम देखते हैं कि ये जो एफ डैश एक्स आया है आपका वो किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, जिसमें वो इंक्रीजिंग कर रहा है वो इसका इंक्रीजिंग इंटरवल होता है।
और किस में डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is, this is the value of function x square e raised to power minus x. अगेन सेम क्वेश्चन. अब ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में इंक्रीज होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी करना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ तो समझो, ये आपकी वैल्यू है. नाउ अगेन वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हियर. डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी 2x, इट विल रिमेन सेम. प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, देन एक्स स्क्वायर विल रिमेन सेम. अगर आप e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे, इट विल बी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज माइनस वन. बिकॉज ऑफ दिस माइनस वन इट विल बी प्लस माइनस माइनस. ओके, नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक e रेज़ टू पावर माइनस एक्स एज अ कॉमन टर्म. वी आर लेफ्ट विथ 2x माइनस एक्स स्क्वायर. अब e रेज़ टू पावर माइनस एक्स जो है आपका, ये हमेशा पॉजिटिव होगा. मैंने आपको पहले भी कहा है, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स हो गया 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स. एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो बेसिकली जो डिसाइडिंग फैक्टर है आपका वो ये ब्रैकेट है. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको यहाँ से पता चलेगा. एंड फ्रॉम हेयर वी कैन टेक एक्स एज अ कॉमन टर्म एंड 2 माइनस एक्स. तो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, इधर एक्स विल बी इक्वल टू 0 और एक्स विल बी इक्वल टू 2. तो 0 और 2. अब 0 और 2 के बीच में से अगर आप यहाँ 1 पुट करते हो, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. आप इसको देखो, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव ही आएगा. तो 2 और इंफिनिटी के बीच में अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा. तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका नेगेटिव आएगा. इज इट क्लियर? तो बेसिकली जो आपका इंक्रीजिंग है फंक्शन वो कहाँ पर है, 0 और 2 में. ये क्लियर हुआ तो थम्स अप करो. भैया एक बार 02 वाला बताना दोबारा से. कौन सा वाला? ये 02 नंबर लाइन वाला पार्ट. 0 2 के बीच में कोई भी पॉइंट रखो, से आपने 1 रखा तो क्या आएगा, 1. 2 माइनस 1 पॉजिटिव भी तो आएगा. 2 और इंफिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट रखो, से आपने 3 रखा, 3 रखो यहाँ पर 3. 2 माइनस 3, अब 2 माइनस 3 तो माइनस 1, तो नेगेटिव भी तो आएगा. सिंपल है. तो आपका जो फंक्शन इंक्रीजिंग है वो 0 2 के बीच में है. तो बी इज द राइट ऑप्शन. बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज, find the interval in which the function fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing. Now the function is x square minus 4x plus 6. Strictly increasing का मतलब जो आपका f dash x है that should be greater than 0. Strictly में greater than 0 होता है, right? किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड. This is the value of fx, f dash x, that is 2x minus 4. For strictly increasing, f dash x should be greater than 0, should be greater than 0. It means 2x minus 4 should be greater than 0. Now if 2x minus 4 greater than 0, so 2x should be greater than 4 and x should be greater than 2, yes or no? X should be greater than 2. तो 2 या 2 से बड़ा, अब 2 तो आ गया, बड़ा कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक. तो 2 to infinity आंसर हो गया. इज इट क्लियर? You can see that your right answer is 2 to infinity. Question number 17 आप खुद ट्राई करो. Question number 17. Question is question number 17. The real function fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. So the value of function is 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. Strictly increasing and strictly decreasing. एक ऑप्शन तो ये है भाई, ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा. दूसरा ऑप्शन है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा -2 और 3 में. थर्ड ऑप्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीज
and strictly increasing in these interval and strictly decreasing in these. Okay, let's check it out. First of all, this is the given function. We will find the derivative 2x cube, that is 6x square. 3x square minus 6x minus 36. By taking 6 as a common term, we are left with x square minus x minus 6. Now, by middle term splitting, it can be written as x square minus 3x plus 2x minus 6. Now, from here, by taking x as a common term, it will be x minus 3, like 6, x minus 3 plus 2x minus 3. So finally, what we will have 6, x minus 3 and x plus 2, right? So to find the critical point, when x minus 3 is equal to 0, x will be equal to 3. And when x plus 2 is equal to 0, x will be equal to minus 2. So minus 2 and 3. Now, between minus 2 and infinity से we have taken minus 3. अगर आप minus 3 लेते हो तो ये आपका नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव सम ऑफ पॉजिटिव. माइनस 2 और 3 के बीच में से आपने 0 को ले लिया. अगर आप 0 लेते हो तो ये भी आपका नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा. प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. 3 और इंफिनिटी के बीच में आप 4 ले लो. अगर आप 4 लेते हो तो ये आपका पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा. और माइनस 2 और 3 के बीच में तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और माइनस इंफिनिटी माइनस 2 और 3 इंफिनिटी के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. अगर आप ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन आपकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से मैच कर रही है. माइनस 2 और 3 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. ध्यान से करना क्वेश्चन, आपका आंसर ठीक आ जाएगा. पर ऑप्शन पे भी जाना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देखो सेम ऑप्शन डाली हुई है, पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डालिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की ऑप्शन है. और आप में से किसी का आंसर अभी डी भी था. आप इसको मत मेरे भैया साइन देखो, लगा रहे हैं. इसमें लिखा क्या हुआ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. डिक्रीजिंग नहीं है, यहाँ पर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है. एमसीक्यू में बहुत ज्यादा एक्टिव होके पूरा माइंड खोल के आपको करना है. क्लियर हुआ है क्वेश्चन? मेरा भी ये माइनस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का अलग साइन आ रहा है, अब -2 और सामने है, इंफिनिटी बताओ वाले में. क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, दोबारा बताओ. हो गया भैया क्लियर. रीड. ओके, ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 18.